Guest for tonight. Let's give a big round of applause and let's welcome Vivek Oberoi sir on the stage. I need a mic. Vivek sir, since you have seen both this song released today, what is your views on it? Of course, I'm a big fan of yours. I've been watching your movies, everything. I mean, your songs are so beautiful. You perform a really wonderful job on screen. I'm a really big fan of yours. So I just need your views for them as well as for everybody. Like, how was your, share your experience and any feedback if you would like to share. Good evening, everyone. Good to see everybody in the house. Thank you for coming here. सबको मुझे पता है कि कोविड के बाद बहुत सारी दिक्कतें हैं चल रही हैं लोगों की, फिर भी everybody's come here in support of this new company on such an auspicious day for Music Garage. So I really appreciate, so that please give yourselves a big hand for all of you for making the effort to come here and support a new dream. I'm here because इस company के आगे बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल प्रोड्यूसर हैं, who I have great respect for. She's also a personal friend, and I think she's going to be, in the next 5 years, one of those names, one of those producers जहाँ पे सब बोलेंगे अच्छा, if it's Shikha's name, SK Ahluwalia is on the name, on the product, that means it's going to be a high quality product. So big hand for SK Ahluwalia, or Shikha as we know. And कंपनी के आगे ये हैं और कंपनी के पीछे मेरे भाई हैं जो इस वक्त आगे बैठे हैं लेकिन आगे आते नहीं। इनका नाम अमर रहे, अमर था, अमर है, अमर रहेगा। He's a very shy person, but a man with a great vision. Music Garage was his dream, where he himself loves music, he loves the vibrance of youth, he loves the energy that youth brings, and he loves just sheer talent. And एक बात जो बैठे-बैठे उनके घर में लिविंग रूम में गप्पे लड़ाते हुए, बातें करते हुए निकली, he created a company out of it. Hats off to you, brother. Just to create a platform to promote young talent. I mean, we just saw 2 wonderful videos. We saw 4 wonderful talents, 2 directors, DOPs, their work, music, their work, and sab naye, am I right? Right? All are new. All are new, and Music Garage is giving them such a lovely platform so that people can see their work. आज Steffi, right? Am I getting your name right? Steffi सामने बैठी हैं. Now, I'm sure so many people are going to watch this, and people who are producers or people who are casting are going to see Steffi's work and saying, oh, she's looking wonderful in this video, and maybe, here's an opportunity for her to take the next step towards a bigger launch and a bigger success in her career. And I think that's what Music Garage is all about. The spirit of Music Garage is to bring good talent out there, give them a platform to prove themselves. And ऐसा बहुत कम होता है. So hats off to you, Amar bhai. Being an outsider, you're giving a lot of chance, a lot of opportunity to outsiders, to pure talent. And that's what I think the DNA of Music Garage is all about. I wish this company phenomenal success. I hope you have millions and millions of followers and billions of views. And I know that this company is only going to get better and better and go higher and higher with every passing day. So congratulations to everybody, the whole team and everybody who performed here tonight. Fantastic. All the best. Thank you, sir. Now I guess the house is open for the press, for the questions.
So, firstly, congratulations, starting from you. Thank you so much. Thank म्यूजिक गराज के लिए congratulations और साथ में दोनों गाने बहुत ही बेहतरीन है. क्या कहना चाहेंगी आज इस मौके पर? Nothing. It's like, when you think of a baby, then you conceive a baby, and then finally the baby is out. It's that emotion. बहुत खुशी है. Right. And like we mentioned, the person who's actually said the dream Amar, I'm just the face here. And yeah. So, विवेक आप क्या कहना आई चाहेंगे? थिंक शिखा बहुत ज़्यादा हम्बल बन रही हैं. शी इज़ नॉट जस्ट द फेस, शी इज़ ऑल्सो द हैंड्स, द माइंड. शी वर्क्स वेरी हार्ड ऑन पुटिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर. शी इज़ नॉट समबडी हु वाज born and brought up in this industry like me. It does not come, क्या कहते हैं, DNA में, genes में नहीं है, but she's kind of developed an aesthetic of her own. And even the content that she's doing, even the films that she's doing, and I know the films that she's coming up with, some of them are just fantastic stories. And I'm really happy that women are coming out with such good films, such good stories. And पुरुष प्रधान एक जो इंडस्ट्री रही है, वहाँ पे औरतें are taking the baton and pushing it the envelope, and Shikha is one of them. I think that she is going to do the same thing in Music Garage. This is baby steps. अभी शुरुआत ही हुई है, but I'm pretty sure कि जो आगे आने वाले गाने होंगे, they will be even better than this, and this company will keep growing. And एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो यंग टैलेंट को रिकग्नाइज करें. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जैसे जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने थोड़ा सा अलग रूट चुना कि मैं अपने पिताजी के बल पर नहीं आऊँगा. आई विल नॉट आस्क माई फादर टू प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर मी. आई विल नॉट आस्क हिम टू लॉन्च मी, जो तब बहुत ही एक चलन था. बट आई डिड नॉट हैव सो मेनी एवेन्यूज़. तब मेरे पास म्यूज़िक गराज जैसी कोई कंपनी थी जहाँ पे मैं जाके एक वीडियो बना के अपना टैलेंट दिखा सकता. तो मुझे एक बिल्कुल टेढ़े तरीके से जाके राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में एक ऑडिशन करना पड़ा और पागलपन करना पड़ा. वो मेरी किस्मत थी कि आई गॉट अ चांस, राइट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सबको नहीं मिलता. आई थिंक म्यूज़िक गराज इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बिकॉज जब आप 100 वीडियो बनाओगे, और ये कंपनी बनाएगी, जब आप 100 वीडियो बनाओगे तो 100 नए लोगों को टैलेंट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा. आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ लोग आपको देख के पसंद कर सकते हैं. एंड बाकी जो लोग आज कास्ट कर रहे हैं, बाकी जो लोग आज फिल्में बना रहे हैं, जैसे मैं कहीं कास्ट कर रहा हूँ, मैंने देखा यार ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं या एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, एंड आई से व्हाई डोंट वी कास्ट हर, और व्हाई डोंट वी गिव हिम अ जॉब एज अ डायरेक्टर. तो इस तरह से काम सामने आता है, एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट दिस कंपनी. So, विवेक ने तो इतना कुछ कह दिया. How was it for you to get him on board? आज साथ में लेकर It's आना. कई चीज़ें किस्मत की होती हैं. You can't say much. He's our destiny. We are very, very fortunate to have him standing here. Right. And I don't think certain things you can't put money on. It's a relation. I think that's what Vivek is to Music Garage. And we are very fortunate to have him because we are a young company, Right. We're not coming with any kind of support like he mentioned. But we are coming with a very beautiful intention that, like everybody knows today, that content is king. But who makes that content, is the zeal of all the newcomers. और हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ है, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट हम सब फिल्मी हैं. Right. हम सब के हेयर स्टाइल बदलते हैं एक्टर्स के हिसाब से, कपड़े बदलते हैं उनके फैशन एरास के हिसाब से. सो वी ऑल आर फिल्मी एट हार्ट, एंड वी रियली बिलीव इन म्यूजिक गैराज टू गिव चांस टू पीपल who nobody is going to give chance to. Right. But once they see them on Music Garage, then Right. things would change hopefully. Right. Yeah. We hope so. So विवेक congratulate भी करना चाहूँगी Inside Edge की अरे finally. थैंक यू यार, बाहर आ चुकी है. फाइनली How सुपर एक्साइटेड. excited are मैं you? एक्चुअली अभी हाल ही में दुबई था, T20 के मैच देखने गया था अपने बेटे के साथ में, और हम इंडिया को चीयर करने गए थे, और वेरी डिसअपॉइंटेड कि इंडिया हार गई. लेकिन वहाँ पर हर कोई जो मिल रहा था मुझे पूछ रहा था, इनसाइड एज 3 कब आ रही है. मैंने सेड यार यहाँ उस शो के बारे में बात मत करो, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी. बट एवरीबडी वाज आस्किंग, जोक्स अपार्ट, द फैंस लव इट, एंड वी आर ऑल एक्साइटेड एज अ टीम. Everybody from Farhan, Ritesh, myself, to Karan, Anshuman the creator, to the entire cast and crew. Everyone's super excited, and इस बार बड़ी टक्कर भी है सीजन 3 में, जैसे आपने पोस्टर में देखा है. My social media handles have been going crazy all day. जब से सुबह announcement आई है तब से people have been reaching out saying super excited. तो I'm hoping December 3rd को Inside Edge is received with a lot of love. Right. Besides that,
फिल्में कब रिलीज होने वाली हैं आपके साइड से, बिकॉज यू नो सिनेमाज ओपन हो चुके Yeah. हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू, तो क्या No, कहना of course. चाहेंगे? So there's a bunch of work that I've signed up. I've signed about 6 projects. Right. Some of them are OTT, some of them are for theatrical. सबकी shooting अब शुरू हुई है. To keep my Malayalam fans also happy, I'm Right. doing my South fans. I'm doing a film right now, which is again with the Lucifer team जो थी उनके साथ में दोबारा एक हम रिपीट कर रहे हैं. कड़ुआ उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और जनवरी से बाकी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू हो जाएगी. I'm shooting right now for my show with MX Player and in which I play the protagonist and Anna is there playing the antagonist. So again, Anna के साथ काम करने का एक बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा. I've never worked with him. My father has worked with him. I've never had the chance. So now we're working together on a very big, it's a mega project on the platform, on the OTT. उसकी shooting शुरू हो चुकी है. So I'm super excited getting back to work. थैंक यू सो विवेक मच. जी, बड़ी अच्छी बात है, म्यूजिक को दोबारा ट्रैक में लेके आए बड़े अच्छे तरीके से. देयर वाज अ टाइम व्हेन म्यूजिक यूज्ड टू बी बहुत इंपॉर्टेंट था फिल्म को हिट करने के लिए. आप लोगों ने वही काम किया. Thank you, Pajal. आगे Thank you, कुछ Pajal. कहना चाहिए. बस यही कि I think music should have soul, and Music Garage's focus is to create music that connects with people, touches hearts, has some degree of emotion, and has a lot of soul. शिखा के बारे में ये बता दूं मैं कि लोग जानते नहीं हैं कि she produced a film almost 10-11 years ago which won one of the highest honors at Busan Film Festival, and I think Nawaz at that time was like a newcomer-ish. Yeah, It was barely a few films. I don't even know, was it his first or second or third film or something like that. So Nawaz starred in that film, wonderful film that she produced at that time. So she's always had quality in mind, and I think that's the idea. The idea is to create good quality music जो लोगों को छुए. आज जब मैं अनकही बातें, the song, अनकही बातें देख रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे देख के साथिया की याद आ रही थी. You know, आदि और सुहानी की याद आ रही थी. वो जो moments देख रहा था, एक प्यारी सी simple innocent love story की. I miss that sometimes on screen. I miss that innocence and that love on screen sometimes. थैंक यू सो मच. All right, bye guys. How are you? Shikha, come, please come. Come, Shikha. सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी गाने के लिए. गाना बहुत ही अच्छा है, बताना चाहेंगी कुछ कैसा रहा है? थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको पसंद आया, सब बहुत पसंद कर रहे हैं. तो जो हमारा गाना है अनकही बातें, अनकही बातें इसको हमने पिकअप किया है कि हमने एक स्मॉल टाउन लव स्टोरी हमने दिखाया है. जो छोटे शहर में जो प्यार होता है ना, वो बड़ा प्योर होता है. ऐसे दूर दूर से इशारे होते हैं, दूर दूर से नज़ारे देखे जाते, यू नो, ऐसा होता है. तो हमने पूरे अपने गाने में बिल्कुल वही एसेंस रखा है. और मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ, तो मुझे पता है वो प्यार कैसा, यू नो, वो होता है. तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए वो कैरेक्टर में जाना कि यू नो छोटे शहर में हम कैसे पोर्ट्रेल कर रहे हैं. तो हमने वही पूरे गाने में दिखाया है. एंड अमीश मेरे को एक्टर हैं, तो वो जिस तरीके से मुझे देखते हैं ऐसे झलक में, तो वो सब कुछ हमने पोर्ट्रे किया गाने में. लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो आई एम रियली ग्लैड दैट सबको पसंद आया है गाना. वेल, जैसे कि आपने कहा कि यू नो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था पोर्ट्रे करना, कभी लव एट फर्स्ट साइट एक्सपीरियंस किया है? हाँ मैं ऑलरेडी ब्लश करने लगी हूँ. मैं एक्चुअली जब मैं क्लास 7th में थी, एंड हाँ मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी, तो रिवील ही हो जाएगा. बट मैं क्लास 7th में थी, एंड तब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था. बड़ा फिल्मी सीन था. मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी, उधर से मैं एक टूर्नामेंट के लिए जा रही थी. मैं बैडमिंटन खेलती थी एक्चुअली, तो हम टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे. तो वहाँ से एक प्लेयर आया और मुझे एकदम ऐसे हुआ, उफ, लव एट फर्स्ट साइट. मेरे लिए वो था. तो आई नो व्हाट इट फील्स लाइक. काफ़ी बचपन में था, बट मुझे है वो. सो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने में कितनी अच्छी हैं आप, या फिर यू नो अनकही बातें ही रह जाती हैं? मतलब एक अलग था टाइम, यू नो, बचपन का. और अभी जब एक दूसरी चीज़ होती है, जब हम एक्चुअली शूट करते हैं, हम फिल्म बना रहे हैं या गाने शूट कर रहे हैं, तो वो जोन अलग हो जाता है. यू नो, वो पूरा टेक्निकलिटी आ जाती है चीज़ें. फिर आपको एक्चुअली वो पोर्ट्रेल एक्ट करना पड़ता है जो नेचुरल लगे.
तो बेसिकली मैं और हमारे को एक्टर की केमिस्ट्री, एक्चुअली लोगों ने बोला कि आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो शूट करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ था, डायरेक्टर में डायरेक्ट करते जा रहे थे एंड वी कुड डू इट वेरी इजीली. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. हमने वाराणसी में शूट किया था, तो वो एक एक्चुअली जो होता है ना बैकग्राउंड फील भी हमें आ रहा था कि हम एक्चुअली जब शूट करने जा रहे थे तो हम ऐसे ये नहीं कि हम प्रोडक्शन कार से जा रहे थे, हम एक्चुअली वो ई रिक्शा में घूम रहे थे, हम लोकेशंस पे ई रिक्शा में जा रहे थे, वहाँ के लोकल भैया से बोल रहे थे, वहाँ से बात कर रहे थे, तो हम बड़े उस जोन में चले गए थे कि हम ये शूट करने हैं, हम यही लिव करेंगे 3 दिन के लिए. सो व्हाट वाज योर मॉम, डैड एंड फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था गाना देखने या के बाद? सो एवरीवन लव्ड इट. सिंस मॉर्निंग ही मुझे कॉल आया है मेरे फ्रेंड्स का, एंड आई हैव शॉट 4 more songs एंड more films, बट हर एक बोलते हैं ना, हर प्रोजेक्ट कुछ नया होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो एक्चुअली उनका कॉल आया, ओ द स्टोरी लुक्स नाइस एंड यू लुक, मुझे एक्चुअली बोला यू लुक वेरी सिंपली इनोसेंट, विच मुझे अच्छा लगता है. हर नए गाने में नया कैरेक्टर, हर फिल्म में नया कैरेक्टर, तो इसमें वो जो सिंप्लिसिटी वाला एसेंस है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील है. पापा को बहुत पसंद आया गाना. पापा वाज लाइक कि बहुत प्यारी लग रही हो. सो इट्स ऑलवेज स्वीट कि पेरेंट्स से वो जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो बहुत अच्छा लगता है. वेल बिग बॉस सीजन 15 फॉलो कर रही हूँ. आई एम सॉरी, एक्चुअली पिछले 6-8 महीने में मैं अपनी फिल्म शूट करी थी साउथ में, एंड थोड़ा मैं टीवी कम फॉलो करती हूँ, वो मुझे बड़ा वो हो जाता है, मैं बड़ी इमोशनल सी हूँ ना, और वहाँ बड़ा अलग सा माहौल चलता है, बट आई रियली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. मुझे भी कभी आया था ऐसे बिग बॉस से, बट बेसिकली मैंने शो फॉलो नहीं किया है, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पार्ट ऑफ शो बनूँ या ना बनूँ, बट जो भी चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू इन द हाउस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेट कट वेट